morning, everybody. I hope you all are fine there. As you all know that we have started the third chapter of your textbook, that is Deep Water from Fleming, right? It is written by William Douglas, an American writer. In this chapter, he talks about his own experience, his own story, how he overcame the fear of water, how he got rid of hydrophobia, how he became free from this fear of water, right? So as we all know that when the chapter starts with the description when he was 9 or 10 years old, and at that time narrator had, this writer had decided to learn how to swim. He wanted to learn in the river, but river Yakima was treacherous, it was dangerous, maybe it would have claimed so many lives earlier, so many people would have lost their lives there in the dangerous river Yakima. So the mother had warned the writer many a times not to go to Yakima river. Instead, then he decided to learn swimming at a swimming pool, that was YMCA swimming. He decided to go there. He says that the pool was safe. Of course, it was deep at some point, it was shallow at some point, because you all know that swimming pool is made in such a way that different age groups can swim there properly and safely. So for children also, there is a space in the swimming pool where the bottom is not so deep. There is some point where you would see that water is very deep, but that is kept for grown-up children and senior people, right? So he decided to go there. He had an instructor, but page number 25 पर लिखा है कि from the beginning only the narrator had fear of water, right? And it is mentioned that why he was afraid when he went to YMCA pool. It is mentioned in the first paragraph on page number 25 कि जब वो 4 साल के थे, when he was 4 years old, एक दिन वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गए थे, सर्फिंग कर रहे थे। 4 साल का बच्चा दरिया के पानी को, वेव्स को फेस करता हुआ, तो पानी बहुत बार उसके ऊपर से चला जाता है। And this seriously created a kind of fear in the mind of the writer. And that's why when he went to YMCA pool, the old memory was revived. पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वो fear जो था, है ना, वो fear फिर से उनके दिमाग में आ गया। तो YMCA pool गए वो, थोड़ा बहुत पहले दिन उन्होंने छोटा डिस्टेंस कवर भी किया। धीरे धीरे he was becoming confident, right? One day it happened that he went to the pool when there was no one there. कोई नहीं था, प्लेस एकदम शांत था, स्विमिंग पूल पूरा ऐसे ही था, कोई वहां पर नहीं था पानी में। तो ये चला तो गया, जब राइटर छोटे थे तब वो चले तो गए, बट ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो ओल्ड मेमोरी फिर से वापस आ गई, वो पुराना डर वापस आ गया। डर तो गए, तो उनको ऐसा लगा कि आई शुड वेट टिल समबडी कम्स, बिकॉज आई शुड नॉट स्विम अलोन। At that time he was not a good swimmer, he had not learnt it properly. So it was advisable even कि बच्चा अगर swim कर रहा है तो there should be somebody with him or her, right? So he waited for somebody to come, and there really came somebody. Now who was this somebody? A very healthy boy, है ना, having rippling muscles, ऐसा लिखा है, but वो बहुत ही ताकतवर बंदा था, अच्छे muscles डेवलप किए थे। आकर ही इसकी मजाक उड़ाते ये कह के, ऐ स्किनी फेंको क्या पानी में, ऐसा करके उसने बच्चे को उठाया, पानी में फेंका। नाउ द चाइल्ड स्टार्टेड गोइंग डाउन, वो धीरे धीरे पानी में, तो लिखा है कि फिजिकली इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू survive in this swimming pool, but mentally he was strong.
So he had made a plan during that time. जब वो नीचे जा रहा था पूल में तो एक प्लान रेडी था. प्लान क्या था कि when he would touch the bottom of the swimming pool, he would give a strong jerk to his body. He would come up like a cork. ढक्कन जो होता है उसकी तरह एकदम स्पीड में आ जाऊंगा. ये उसका प्लान था. तो mentally he was alert while he was going down. But friends, it did not happen the way he wanted. He took time to reach there first. He was so tired while going down that he could not give that strong jerk. So he tried to come up, but his head was still inside and he was simply able to see water all around. बाहर आ गया होता, अगर jerk सही लगा होता तो वो बाहर आ गया होता, लेकिन उसको सिर्फ क्या देखने को मिला, सिर्फ पानी ही दिखा. इसका मतलब वो पानी में से बाहर नहीं आ पा रहा था. वो सारा लिखा है 25 नंबर के पैराग्राफ पेज जो है उसने लास्ट पैराग्राफ. उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो मैंने समझाया था आपको पहले प्रीवियस वीडियो में, उसमें भी लिखा है कि उनके लेग्स जो थे मान लो पैरालाइज्ड हो चुके थे, लंग्स तो थे मान लो कि एकदम डेड हो चुके थे. ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. और पानी से बाहर आने के लिए यू नीड स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग पावर जो उनके पास अब नहीं था. देखा इधर उधर, सिर्फ ऐसा ही लग रहा था कि पानी उनको अंदर खींच रहा था. ही वॉज नॉट एबल टू कम. राइट, ऐसा सब लिखा है. लंग्स में पेन था, हेड में पेन था, उनको डिजीनेस फील रही, उनको लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगा. ये सब वहां पर लिखा है बच्चों. और अचानक से लिखा है पैराग्राफ नंबर 3 फ्रॉम द बॉटम, नीचे से थर्ड पैराग्राफ. एंड देन sheer stark terror seized me. ये सब जब हो रहा था, he was going down, he was trying to come up, but he was not able to come up somehow, as he had no strength. Lungs were tired, we can say. Legs were also tired. He was feeling dizziness, so he was not able to come up. तो क्या हुआ, उनको लगा कि मैं डूब जाऊं. और जब ऐसा लगा तो फिर से वो पुराना डर, जब वो 4 साल के थे, वो डर फिर से उनकी मेमोरी में फ्लैश हो. लेकिन फिर भी लिखा है कि डर था, लेकिन थोड़ी जगह दिमाग में प्लान के लिए भी थी. तो वो प्लान यही था कि नीचे जब टच करेंगे तो जोरदार जर्क मारेंगे, जंप मारेंगे बॉटम को टच करके और निकलने की कोशिश करेंगे. लेकिन लास्ट पैराग्राफ में लिखा है पेज नंबर 26 पर that the jump did not make any difference. जंप मारा फिर भी आजू बाजू में पानी ही था. इसका मतलब जंप was not strong enough to take him out of water. पानी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे. अब एक ही बात ऑप्शन था कि वो सरेंडर कर दे, क्योंकि ताकत तो है नहीं, बॉडी पूरा एग्जॉस्टेड था, लेग्स थक चुके थे, लंग्स थक चुके थे. दैट वाज मेकिंग डिफिकल्ट फॉर हिम टू ब्रीथ प्रॉपर्ली. तो सारे प्रॉब्लम्स थे. तो अब एक ही ऑप्शन, सरेंडर कर दे. डेथ शायद विजिबल थी. अब आ रहा है पेज नंबर 27. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out. है ना? इतनी मेहनत करने के बाद जब थकान महसूस हुई, सरेंडर करने का सोचा, तब मान लो कि गॉड ने हेल्प की. उन्होंने जब आंखें खोली फिर से तो उनको लाइट दिखी. उन्होंने देखा कि मेरी आंखें भी बाहर आ गई है, नोज भी बाहर आ गया. Then I started down a third time. Unfortunately, तीसरी बार वो नीचे पानी की ओर जाने लगे. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. जो लाइट दिख रही थी वो लाइट फिर से चली गई. मान लो कि थोड़ा पानी चला गया, आजू बाजू में सिर्फ पानी, फिर से वही हालत जो पहले थी. Then all effort ceased. सारी कोशिशें बंद. Even my legs felt limp and blackness swept over my brain. मान लो कि दिमाग भी अब पूरी तरह से काम करना
बंद हो गया, वहां भी डार्कनेस छा गई थी, अंधेरा छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, डर भी चला गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, देयर वाज नो मोर पैनिक, इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, no need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. अब इस पैराग्राफ में साफ लिखा बच्चों, इसका सीधा मीनिंग ये समझना है कि the narrator surrendered himself, अपने आप को सरेंडर कर दिया था। क्यों? He knew that now there was no hope left. जब सरेंडर किया तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि चलो एकदम वो फ्लोट कर रहे थे पानी में, ना डूबने का डर, ना मरने का डर, ना बाहर आने की चिंता, बस he was simply feeling good, एकदम मानो, क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया था। अब पता ही था कि वैसे भी अब कुछ होने वाला नहीं, राइट। I crossed into oblivion and the curtain of life fell. पहले उनको ये फील हो रहा था कि वो फ्लोट कर रहे, कोई टेंशन नहीं, अब जैसे सरेंडर कर दिया पानी में वो, लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ कि वो जो रियलाइजेशन था लास्ट का, वो भी रियलाइज होना बंद हो गया, आंखें बंद हो गई, लाइफ का पर्दा जैसे गिर गया, जैसे लाइफ का चैप्टर क्लोज हो गया। अब उनको कुछ नहीं पता था कि उसके बाद क्या हो। आगे लिखा है, The next I remember I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly died. Be all right now. Let us carry him to the locker room. जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को पानी के बाहर पाया, पानी बहुत चला गया था पेट में, तो वॉमिटिंग भी चल रही। And the boy who had thrown him into water, वो कह रहा सॉरी यार मैं तो मजाक कर रहा था, तो बाजू वाला दूसरा बोलता है ऐसी मजाक करते हैं, मरने ही वाला था, चलो इसको उठाओ और लोकर रूम में ले जाते। Several hours later I walked home. I was weak and trembling. बहुत घंटे वहां गुजारे, जब थोड़े नॉर्मल हुए घर की ओर गए, लेकिन फिर भी वो कांप रहे थे, उनको कमजोरी फील हो रही थी। I shook and cried when I lay on my bed. जब घर गए बिस्तर पर गए, simply started crying. I could not eat that night. क्योंकि आप सोचो कितना डर था। अब उस दिन मान लो उनका एंड ऑलमोस्ट फिक्स था, तो जिसने सामने मौत देखी है ना, जब आज की बात कर रहा हूं तो अभी डे बिफोर अर्थक्वेक आया 5.5, तो जैसे सब करके बाहर निकल गए, है ना। वो दूसरा शायद हम ढंग से सो भी नहीं पाए थे, क्योंकि डर हमको छोड़ता नहीं। शायद कुछ ऐसा ही था इसके केस में, इसको पानी का डर था। I could not eat that night. For days a haunting fear was in my heart. बहुत दिनों तक वो उनके दिल में, दिमाग में ही छाया रहा वो डर। The slightest excursion upset me. अगर थोड़ी बहुत भी वो बाहर जाते थे, मूवमेंट करते, तो भी अब उनको वो डर ही लग रहा है कि कुछ होगा। Making me wobbly in the knees and sick to myself. अब थोड़ा मैं चलता हूँ तो भी मुझे ऐसे पैर मेरे ढंग से नहीं, वॉबलिंग कर रहे थे, वॉबलिंग, स्टेडी नहीं थे, इतनी कमजोरी उनको फील हो रही थी। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. है ना, इतना डर था कि अब उन्होंने तय कर लिया कि अब मैं उस पूल पर कभी जाऊंगा नहीं। A few years later, when I came to know the waters of the cascades यानी जो waterfall होता, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Tychon or bumping river or bathing in the warm lake of the God rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. जब भी और waterfall को देखते थे, कोई और नदी के किनारे वो जब तैरने का सोचते थे, नदी के पास जाकर के चलो मैं थोड़ा तैर लेता हूँ,
तो वो पुराना फियर जो स्विमिंग पूल वाला था वो फिर से उनको स्ट्राइक करता है ना। देखो ये डर कितना खतरनाक होता है। अगर वो एक बार हमारे में घुस गया तो वो बहुत टाइम लगता है उसको हराने के लिए। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आईसी हॉरर वुड ग्रेब माई हार्ट, है ना। अंदर से वो एकदम जैसे मेंटली फ्रीज हो जाते थे जब वो ऐसा देखते थे, सोच ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो डर जैसे था कि उसने डर ने पूरा दिमाग ऑक्यूपाई करके रखा था इनका। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द इयर्स रोल्ड बाय, साल बीतते गए लेकिन ये जो डर था वो उनके साथ रहा। इन कैनोइज ऑन मेन लेक्स, ये सारे नाम है नदी के, तालाब के। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, सैल्मन जो है वो फिश का नाम है। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, at Bumping Lake in the Cascades, wherever I went, लिखा नदी गए, तालाब गए, बीच गए, कहीं पे भी गए, जहां गए ये डर उनके दिमाग से जाता नहीं था, वो उनको याद दिलाता था बार बार। Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating in the उनको जो खुशी मिलती थी कैनोइंग करके, बोटिंग करके, ये डर उनको ये खुशी एहसास नहीं करने देता था। क्योंकि जब भी वो ऐसा कुछ करते थे, कैनोइंग करते थे, फिशिंग करते, दैट फियर वुड एंटर हिज माइंड एंड इट वुड नॉट अलाउ हिम टू एंजॉय दिस एक्टिविटी। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, from page number 28, first paragraph that start with I used every way, यहाँ से हम next video में चालू करेंगे। तब तक please read the chapter, try to understand, take help of reference book if needed, get the better idea of the chapter. In the next video we will definitely complete the chapter. Till then, take good care of everybody. Thank you. Jai Hind.